কোথায় কি করা হয়েছে, কিভাবে আমরা বিভিন্ন সরকারি প্রতিনিধি বা সরকারের কাছে আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের কথা প্রকাশ করেছি, তার একটা রিপোর্ট আপনাদের কাছে দেওয়া হবে। তবে আজকে সভা শুরু হচ্ছে এখান থেকে, এখানে আমি আহ্বান করছি শ্যামল চন্দ্র সিনহা। শ্যামল সিনহা মহাশয় আছেন, উনি ভক্তি প্রবীণ সাংবাদিক, প্রতি আমাদের বহু পুরনো মেম্বার। গত 19শে সেপ্টেম্বর মহামান্য রাজ্যপালের কাছে আমাদের একটি প্রতিনিধি দল যান, উনি ওই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের কর্মকাণ্ডের সাথে যথেষ্টভাবে যুক্ত থাকেন। আমি আহ্বান করছি অমর নস্কর মহাশয়। অমর নস্কর মহাশয় আছেন, আপনি মঞ্চে আসুন। আমাদের বহু মহিলা সদস্যও আছেন, বহু মহিলা সদস্যও আছেন, তাদের আমি পর্যায়ক্রমে ডেকে পাঠাবো। তাপস চ্যাটার্জি মহাশয়, আপনাকে মঞ্চে আহ্বান করছি, আপনারা মঞ্চে আসুন। আমরা শুধু সংবাদ মাধ্যম ছাড়াও ললিত কলা একাডেমি অর্থাৎ ফটোগ্রাফি বা চিত্রগ্রহণ, যা ললিত কলা একাডেমির মধ্যে পড়ে, তারাও সংবাদ মাধ্যমের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত থাকে। সেসব মহিলা বা পুরুষ ফটোগ্রাফাররাও উপস্থিত আছেন। যেভাবেই হোক, আমাদের প্রথম কথা আমরা জানাই, আমরা ডিসেম্বর মাসে সাংবাদিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে দিল্লিতে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কাছে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করি। এই অভিযোগপত্র দাখিলের উত্তরে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের চিফ সেক্রেটারি এবং হোম সেক্রেটারিকে দিল্লিতে ডেকে পাঠায় এবং আমাদেরও ডেকে পাঠায় দিল্লিতে সূচনা ভবন। আমাদের অভিযোগের হিয়ারিং বা শুনানি হয়, তারপর পর্যায়ক্রমে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কলকাতাতে এসে উপস্থিত হন। কলকাতাতে 11 এবং 12 মে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে এবং রাজ্য সরকারকে নিয়ে দুদিন ধরে শুনানি চলে। সেই শুনানির বিচার পর্ব তারা দিল্লি থেকে জানাবে। মোটামুটি আপনাদের কাছে আমরা প্রতিবেদন পেশ করছি যে সাংবাদিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজ্য সরকারের পুলিশ অথরিটির লোকেরা স্বীকার করে নবান্নতে তারা অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম অ্যাডপ্ট করেছিল, যেখানে সাধারণ মানুষের সাথে সাংবাদিকদেরও নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোল করা হচ্ছিল। সেখানে আমাদের বক্তব্য হয়, কোন সাংবাদিকদের গতিবিধি অথবা তার সোর্স ইনফরমেশন সে জানাতে বাধ্য নয় এবং সেই অনুযায়ী এই কাজটি আইন অনুযায়ী সঠিক নয়। ঘটনার ক্ষেত্রে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার 5 সদস্য দল মন্তব্য করেন রাজ্য সরকারকে যে কোন সাংবাদিকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা বা তার সোর্স ইনফরমেশন অর্থাৎ কোথায় উনি যাচ্ছেন সে প্রশ্ন করা যেতে পারে না। যাই হোক, ব্যাপারটি এখন উনি বর্ণনা বিচার করে পাঠাবেন, তখনই আমরা জানতে পারবো সর্বপ্রথা যে আজকের প্রধান ভূমিকা হলো সংবাদ মাধ্যমে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত নয় বা আইনি নয়। এছাড়া সাধারণ মানুষ বিভিন্ন অভিযোগ বা সাধারণ মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার সেইগুলো প্রতিবাদ করি কিভাবে না আমরা সংবাদের খবর ছাপিয়ে তার প্রতিবাদ করি।
এখন উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মধ্যে বর্ধমান থেকে আসছেন, উনি অল বেঙ্গল পাক্ষিক পত্রিকা সমিতির প্রধান কর্মকর্তা এবং অল ইন্ডিয়া ফর্টনাইটলি নিউজ পেপার অ্যাসোসিয়েশনেরও সাধারণ সম্পাদক। আমরা জগন্নাথকে অনুরোধ করছি আমাদের শ্রীযুক্ত বাজানোর বন্দোবস্ত বৈদ্যনাথ কুমার মহাশয় এবং উত্তর দিনাজপুর থেকে তপনবাবু মহাশয়কে মঞ্চে আহ্বান করছি। তপনবাবু, আপনি মঞ্চে আসবেন। এই বিশিষ্ট কয়েকজনকে নিয়ে আমরা আমাদের সভা শুরু করছি। বিশিষ্ট অনেক সাংবাদিক রয়েছেন, অনেক বুদ্ধিজীবী রয়েছেন, সকলেই একে একে আসবেন। আপনারা সবাই হাত তালি দিয়ে সম্বোধিত করবেন। আসন মঞ্চে দিয়ে আপনি আসুন। ঘটনার চক্রে উনি খুবই ভালো ফটোগ্রাফ করেন, ওনার হাজব্যান্ড একজন পাইলট, সেই জন্য আমরা যথেষ্ট আনন্দিত করব। বলার মতো মানে আমি ছবি দিয়ে করি, তাই জন্য ঠিক সেইভাবে বলার মতো কিছু আমি পাচ্ছি না। আর বক্তব্য পেশ করার জন্য তৈরি হয়েও আছে। এই মেয়েটিকে আমি ডাকছি সলমা বেগম। সলমা, তুমি এসো এখানে উপরে। সবাইকে নমস্কার এবং স্যারকে খুব ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এখানে আমাকে আহ্বান করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমি কিছুই কি বলবো। এখানে আমার থেকে যথেষ্ট বুদ্ধিজীবী সম্মানীয় মানুষ রয়েছেন, ওনাদেরই বক্তব্য ওনারাই বলুন, আমি শুনি। আমি তো এখানে ক্ষুদ্র এক ব্যক্তি। সকলকে ধন্যবাদ এবং সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি। আপনারা পর্যায়ক্রমে নিজেদের কথা বলবেন। এই প্রথম সেশনটা শুধু আপনাদের কিলাদি আছে, তবে নেপাল থেকে ফিরেছে। मैं हिंदी में ही बोलूँगी। यहाँ पर बैठे जितने साथी, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, और मंच के ऊपर जितने बैठे साथी उनको भी कोटि कोटि प्रणाम है। क्योंकि देश पर जब आपदा आती है तो सोचने का मौका नहीं रहता साथी, कौन सा नैया पर पैर देंगे, नैया डूब जाएगी। अगर नैया मझधार में डूब गई माझी, क्या करेगा? माझी बच जाएगा, लेकिन नाव के सवार सारे डूब जाएंगे। तो इसी तरह हमारे देश में जब भूकंप आया था, उस समय मैं घर में थी। मैंने तुरंत सोची कि अब हमें वहां जाना है। मैंने किसी को ना बोली ना कही। दादा भी मेरे पास फोन किया, मैं कहा दादा मैं है कहीं पर। मैंने वहाँ के कलेक्ट्री ऑफिस में गई, वहाँ गई थी कुछ एक काम से। वहाँ जब भूकंप का प्रेरणा आया 12:03 में, तो वहाँ के जितने थे SDM से लेकर के जिलाधीश से लेकर सब दौड़कर भागने लगे। तो हम बोले ये क्या हुआ, उसके साथ मैं भी दौड़ी। तो देखा गया भूकंप आया, और भूकंप आने के बाद भी देखा गया कि वहाँ का थोड़ा सा मट्टी जो है खसक गया। ऐसे ही तो बहुत सा है। मैं वहाँ डर के मारे किसी कमरे में नहीं सोती थी। मेरा सोने का स्थान था एक आम और महुआ का पेड़। उस पेड़ के नीचे मैं जो चद्दर ले गई थी, उस चद्दर को बिछा देती थी और वही सोती थी। यही मेरा था। और खाना जो यहाँ से मैं चूड़ा, मूढ़ी, बादाम यही वगैरह ले गई थी, वही खा रही। वही खा करके मैंने 30 तारीख से कल 19 तारीख तक 20 तारीख तक कल सुबह 11 बजे मैं अपने घर पहुंची। तो मैं ये जानती हूँ कि मैं 36 साल से समाज सेवा करती आई हूँ। सरकार बोलती है भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे, लेकिन वहां मर जाता है लोग, दवा नहीं पाता है। ऐसा भी होता है कि अगर वो अस्वस्थ होते हैं तो उनके सर पर लिखा था भूकंप पीड़ित, उनका पहचान क्या था? भूकंप पीड़ित। हॉस्पिटल के लोग लिखे थे भूकंप पीड़ित। ऐसा क्यों? मैंने जाकर के वहाँ डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बोले कि ऐसा मेरे को आदेश है, उनको लिखा था भूकंप पीड़ित। वो भूकंप पीड़ित है क्या? उनके सर पर लिखा था भूकंप पीड़ित है। भूकंप पीड़ित कोई भी हो सकता है। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ, आज ही भूकंप आ जाए, हम लोग भी भूकंप पीड़ित, तो क्या मैं जाऊंगी हॉस्पिटल में तो मेरे सर पर लिखा रहेगा भूकंप पीड़ित? बात है हमारी सरकार। मैं सरकार के उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग मोटा सैलरी पाते हैं, उस सैलरी से 500 रुपया महज आप निकाल करके उन दरभंगा के पीड़ितों को भेजिए, उस नेपाल के पीड़ितों को भेजिए। आपको शर्म आना चाहिए कि आप 3000
रुपया बाढ़ पीड़ितों के लिए, भूकंप पीड़ितों के लिए पैसा मांग रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या भूकंप पीड़ित मर जाएंगे? बोले आप कहीं और दरवाजा देखिए। मैंने वहां जाकर के एसडीएम से बात किया, बोला कुछ आप लोग मदद करिए। एसडीएम साहब बोले ठीक है देखा जाएगा। आज भी वो देख रहे हैं और मैं वहां से दवा का व्यवस्था, हमारे यहाँ कुछ साथी थे, उन साथियों का हमने फोन किया कि ऐसा करो कि कुछ पैसा भेजो ताकि हम उन लोगों को दवा दे पाए। हमारे साथी 200 रुपया करके 10 आदमी भेजे थे और 2000 रुपया दे करके मैं दवा लेकर के उनको दवा दी। और अभी कुछ है, मैं फिर सोच रहा हूँ कि 10 जून को मैं फिर कुछ पैसा कलेक्शन करके मैं फिर सीतामढ़ी के लिए रवाना हूँ, क्योंकि अभी भी वहाँ बहुत काम बाकी है। मैंने पहली बार देखा कि 5 साल 6 साल 7 साल की लड़की और लड़का उलंग घूम रहे हैं, सब उनके पास एक पैंट भी नहीं है पहनने के लिए। तो मैं इस बार सोची हूँ कि कुछ कपड़ा भी लेकर के वहाँ के लिए जाऊंगी, जो हमारी पहली गलती थी कि मुझे भूकंप पीड़ितों के लिए कपड़ा जरूरी था। तो मैं सुब्रता को यही बोलूंगी कि सबसे ज्यादा संवाद के माध्यम से पूरी बातें जानकारी नहीं होती है। जैसे कि हम लोग जगह जगह अपना कैंपिंग करके बातें जानकार करते हैं, उतना संवाद में नहीं होती है। हमारे सामने 50 लोग मरे, दूसरे दिन हमने देखा कि 15 लोग का नाम आया। मैंने जाकर के प्रेस मीडिया से बोला कि आपने ऐसा क्यों किए? बोले सब बात क्या आपके मुताबिक लिखना होगा। हमने 50 लोग मरे, आप 15 बोले, ऐसा क्यों? 35 लोग कहाँ गए? उनका अधिकार नहीं है? इस तरह से मेरा एक नाम और लड़ाकू नेत्री भी है, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं, डरती हूँ ऊपर वाला से। जब उसका कागज फटेगा तो चला जाना पड़ेगा। सिर्फ उसी से काम में करना चाहिए कि जो ऊपर में बैठा है, सबके वो सब जानता है, वो सब कुछ जानता है और हर पल का खबर रखता है। तो उससे डर करके समाज के लिए कुछ करिए। जब समाज में पैदा हुए हैं तो समाज के लोगों के लिए कुछ करिए, तभी आपका नाम होगा, नहीं तो नाम ऐसे नहीं होगा। तो समाज के लिए करने के लिए आप सभी दादा के साथ हाथ से हाथ मिला करके तैयार होइए। कोई भी देश पर आपदा आए तो पहले खड़ा होना है, क्योंकि सरकार पैसा पास करते करते महीनों लगा देती है। जाते जाते लोग महीनों लगा देंगे, हमारे बीवी बच्चा को सेव करके तब जाएंगे दान के लिए, लेकिन हमें किसी का चिंता नहीं था। मेरा एक लड़का है, लड़का को बोलते हैं कि तुम खाना हो खाओ, न खाना हो मत खाओ, हम चले देश की सेवा में, क्योंकि देश की सेवा में पुकार नहीं है, कर कर में देश की सेवा है, कर कर में देश की सेवा क्या खून है। तो देश भक्त होने के कारण हो जाए तो हमें किसी का मुंह नहीं खाना पड़ेगा, हमें जाकर के फौरन उस काम को कर देना पड़ेगा। कहीं भी कोई आपदा आए काम करना है। यही कर करके कहने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि उन्होंने बोले वहाँ का विजेता करने के लिए, यानी जो मैंने 15-16 दिन में किया वो मैंने 10 मिनट में कैसे कवर कर दी। यही कर करके मैं अपनी छोटी सी जो कार्यकलाप की उसमें विराम दे रही हूँ। मैं एक ही कहती हूँ, आई है देश के ऊपर आफत, साथियों तैयार हो जाइए, फिर ऐसा कोई मौका नहीं आएगा। वो भूकंप पीड़ित आपको पुकार रहे हैं, आप उनके वहां जाइए। रहे हैं भूखे नंगे व्यस्त। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজ করতে গিয়ে আমাদের শোনালেন, আমাদের সদস্যরা সেটা ভালোভাবেই অনুভব করলো এবং সবাই আনন্দিত হলো। আমরা গত বছর একটি সিডি অ্যালবাম প্রকাশ করে